Good morning, students. Now in today's lecture, we will discuss about electric current in conductors. Okay, how electric current flows and what are the terms related to them depends on it and different factors. Okay, we will see now. Electric current in conductors. There are two types. Two types in the sense we can discuss the conductor without applying potential difference and after applying potential difference. So first condition, behavior of conductor in absence of potential difference. Okay. Now consider any conductor, that is of course of metallic conductor. Okay. Because it contains large free electrons. Now in any conductor there are free electrons which are called conduction electrons. Okay. Now in average in metallic conductor there are about 10 raised to 29 electrons per meter cube. This is known as number density of free electrons. तो per meter cube मतलब मीटर क्यूब इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस होते हैं 10 raised to 29 electrons. Okay, and that number density of electron is uniformly distributed over the length of the conductor. Okay, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं. Now, अब हम कंसीडर करते हैं फर्स्ट कंडीशन, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन द एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, जैसे as shown in the figure, no potential difference is applied across the conductor. तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडमली मूव इन द कंडक्टर and the energy gained by the electron is from the temperature of the surrounding. जैसे टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इंक्रीज डिक्रीज होता है, ओके, वैसे इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी कम ज्यादा होती है एंड दैट इज नोन एज थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाउ थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका एक फार्मूला देखिए, जनरल फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का हाफ m v स्क्वायर, यहाँ पर v का मतलब vrms मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. ओके, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मतलब that is the average velocity of all electrons is equal to 3/2 kT. अब यहाँ पर k का मतलब होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, that is 1.38. ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है. T का मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ओके, नो अब Vrms देखिए, ये जो पॉइंट्स है यहाँ पर 3/2 kT, Vrms that is root mean square velocity. These are the terms related to kinetic theory of gases. तो वही इक्वेशंस हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं फॉर द इलेक्ट्रॉन्स. जस्ट कंसीडर इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स. नाउ एट रूम टेम्परेचर, अब रूम टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर कितना होता है जनरली 25 या 27 डिग्री सेल्सियस. अगर 27 डिग्री सेल्सियस कंसीडर करते हैं तो उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कन्वर्ट कीजिए प्लस 273, सो दिस इज 300 केल्विन. अगर रूम टेम्परेचर T इज इक्वल 300 केल्विन होता है तब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एवरेजली कितनी होती है? इट इज अबाउट 10 raised to 5 मीटर पर सेकंड. ओके, नाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडमली मूविंग. इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूविंग होते हैं और उनकी एवरेज वेलोसिटी इतनी होती है. नाउ नेक्स्ट टर्म मीन फ्री पाथ, उसका मीनिंग क्या होता है? The average distance traveled by electron, that is free electrons, between two successive collisions is called mean free path. Okay, देखिए, that electrons are randomly moving elsewhere inside the conductor, and during their movement they collide with each other. Okay, so suppose यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है and it starts moving towards in this direction, it collide with another electron, then change its direction. Okay, so this is random motion. लेकिन between two collisions जो distance होता है straight line traveled by the electron, that is known as free path. Now during n numbers of collisions, that is called mean free path. So total distance travel divided by number of collisions. ये इसका फॉर्मूला है. Mean free path is equal to total distance travel, okay, divided by number of collisions. मतलब n collisions के दौरान कितने फ्री पाथ्स होंगे, that is called mean free path. Now
Okay, lambda is equal to total distance traveled upon number of collisions. Now this mean free path, ठीक है, during collisions mean free path averagely कितना होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, that is lambda is equal to 10 angstrom. अब angstrom मतलब 10 raised to minus 10 meter, that we can write it is at 10 into 10 raised to minus 10 meter. ठीक है. Now the time taken by electron between two successive collision is called relaxation time, because suppose यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड हुआ, बाद में इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. ओके, नाउ इट मूव्स फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन. तो इस दौरान ओके ड्यूरिंग दिस स्ट्रेट लाइन पाथ इलेक्ट्रॉन डज नॉट कोलाइड विथ एनी अदर इलेक्ट्रॉन, सो दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम. द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम. और रिलैक्सेशन टाइम का फॉर्मूला क्या होगा फिर? टोटल टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ कोलिजंस. ओके, सपोज 100 कोलिजंस आर टेक्स प्लेस, तो टोटल टाइम कितना लगता है 100 कोलिजंस के लिए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजंस. तो सक्सेसिव टू कोलिजन के बीच कितना टाइम लगता है ये हमें यहाँ पर मिल सकता है. सो रिलैक्सेशन टाइम टोटल टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ कोलिजंस. ओके, सो यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम अगर हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं तो यहाँ पर एवरेजली रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स कितना रहता है? अबाउट 10 raised to minus 14 सेकंड, इतना कम रहता है. राइट, देन अब हमें मेन फ्री पाथ का फॉर्मूला पता है, दैट इज लैम्डा. रिलैक्सेशन टाइम दैट इज स्मॉल टी. ओके, तो इसे हम थर्मल स्पीड निकाल सकते हैं, बिकॉज हमारे पास एक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो थर्मल स्पीड इज इक्वल टू मेन फ्री पाथ दैट इज टोटल डिस्टेंस, ओके, डिवाइड बाय रिलैक्सेशन टाइम. सो थर्मल स्पीड डिनोटेड बाय Vt, कैपिटल T सफिक्स यहां पर. Vt इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन T, दैट इज मेन फ्री पाथ अपॉन रिलैक्सेशन टाइम. ठीक है, तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द कंडक्टर रैंडमली. ओके, अब रैंडमली मूविंग इसका मतलब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो. रिजल्टेंट वेलोसिटी भी इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी? जीरो होगी, बिकॉज सपोज एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की तरफ मूव होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन राइट की तरफ, तो इसकी वजह से जो नेट वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की दैट इज जीरो. ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स दैट मींस electrons are moving randomly in a conductor when no electric field is applied, no potential difference is applied. Therefore average velocity of electron becomes zero. इसके वजह से क्या होता है कि no electron passes continuously through any cross section, तो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा. Okay, so no electric current flows when there is no potential difference applied across the conductor. तो ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है. नाउ अब कंडक्टर में क्या चेंजेस होते हैं आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वो हम डिस्कस करते हैं. बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस. एज शोन इन फिगर, कंसीडर कीजिए कि एक कंडक्टर है, लेंथ L, ओके, एंड वन एंड ऑफ द कंडक्टर कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड अदर एंड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. Let applied potential difference is V. Okay. अब यहाँ पर क्या होता है देखिए, that electric field, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, डेवलप होगी between one end to other end. Okay. Now this is known as high potential and this is known as low potential. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है? हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. दिस इज हाई पोटेंशियल एंड दिस इज लो पोटेंशियल. नो, व्हेन कंडक्टर across the conductor potential is applied, we know that being negative charged particles, all electrons now move towards the positive terminal because of force of attraction. Okay, so all electrons now move in the same direction from low potential towards the high potential. See,
यहाँ पर क्या था that electrons are moving in random direction, so resultant velocity is 0. लेकिन यहाँ पर all electrons, every electron moves in the same direction, so net velocity is not 0, it has some value. Okay, so when electron moves from lower potential to higher potential, अब यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन moves towards positive terminal. Okay, therefore positive charges moves from higher potential towards the lower potential. और ये हमें पता है कि conventional direction क्या होती है करंट की, from higher potential to lower potential, that is the flow of positive charges, that is opposite flow of electrons. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल के बीच, v लेंथ L. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E is equal to V by L. This is the formula. Okay. अब फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल. दैट फोर्स इज गिवन बाय F is equal to F, ये तो जनरल फॉर्मूला यहाँ पर is equal to माइनस E into कैपिटल E. ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है E is equal to F by Q. तो F is equal to क्या होता है, Q into E. इलेक्ट्रॉन पर चार्ज उसका सिंबल होता है E, सो माइनस चार्ज होने के कारण यहाँ पर F is equal to माइनस E into कैपिटल E. ओके, नाउ व्हेन वी कंपेयर दिस टू इक्वेशंस, तो हमें एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला मिल जाता है. सो A is equal to माइनस E capital E divided by small m, where m is mass of the electron. तो यहाँ पर ये एक्सेलरेशन हो जाता है. ठीक है, now by applying first canonical equation, फर्स्ट canonical equation हमारे पास क्या है, v is equal to u plus at. ये फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई अगर करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी हम जीरो लेंगे, बिकॉज बिफोर अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस रिजल्टेंट वेलोसिटी जीरो होती है, तो ये जीरो होगी. तो v, ओके, v यहाँ पर d फॉर ड्रिफ्ट, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी, इज इक्वल टू, अब ये इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या है, माइनस e कैपिटल E डिवाइड बाय m, माइनस e e डिवाइड बाय m, ओके, इनटू टाइम, दैट इज स्मॉल t. This is okay. Now this is the formula for drift velocity. Vd is equal to minus e capital E by m into t is equal to, it can be written as, देखिए e by m as it is. अब e का मतलब क्या होता है, v by l into t. These are the formulas for drift velocity. अब drift velocity मतलब क्या होता है, okay. After applying the potential difference across the conductor, big negative charge, we know that all electrons will now move in the same direction towards the high potential. Okay, तो इलेक्ट्रॉन जब मूव होता है तो that collide with vibrating atoms and उसके constant velocity attain करता है इलेक्ट्रॉन. Okay, the constant velocity with which the electron moves from lower potential to higher potential, that is called drift velocity. यहाँ पर डेफिनेशन क्या है देखिए, the average velocity with which free electrons are drifted, मतलब move, okay, towards positive end of the conductor under the influence of external electric field is called drift velocity. That is called drifting velocity या drift velocity. तो इसके लिए ये फॉर्मूला है यहाँ पर. Okay, now we will discuss the relation between इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. इन दोनों के बीच हम रिलेशन यहाँ पर डिस्कस करते हैं. ओके, कंसीडर कीजिए n मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. जैसे हमें पता है कि मेटल्स में जनरली नंबर डेंसिटी कितनी होती है, 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, लेट इट इज n. ओके, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर ऑफ लेंथ l, मतलब पर मीटर क्यूब कितना होता है, ये नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन लेंथ ऑफ द कंडक्टर ये है, तो थ्रू आउट द लेंथ L कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट मींस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर ऑफ लेंथ L इज इक्वल टू n into AL. ओके, सो व्हाट इज AL, दिस इज वॉल्यूम.
A into L, बिकॉज क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता है A, लेंथ L, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज AL, ठीक है। तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर डेंसिटी कितनी है N, यहां पर कितनी है N है, तो टोटल वॉल्यूम में कितने होगी N into वॉल्यूम, ओके। तो वॉल्यूम के लिए यहां पर हम AL रिप्लेस करते हैं, NaL। नो टोटल चार्ज ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स dq इज इक्वल टू, अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, हर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है E, दैट इज 1 माइनस नेगेटिव होता है ना, माइनस 1.6 10⁻19 कूलम। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कितना होगा मल्टीप्लाइड बाय माइनस E, ओके, या फिर E से मल्टीप्लाई करते हैं। सो टोटल चार्ज इज इक्वल टू E NaL, ओके, या फिर NeAL, यहां पर N और E रिशफल किया है। सो दिस इज टोटल चार्ज। देन टाइम टेकन बाय ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द कंडक्टर, मतलब फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, L डिस्टेंस ट्रैवल करना है, और उसकी स्पीड कितनी होती है आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। तो टाइम इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम टेकन दैट इज dt इज इक्वल टू L डिवाइड बाय Vd, इतना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम टू मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ओके। अब हमें dq पता है, टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, टाइम कितना लगता है टू मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ये भी पता है, ओके। तो इससे हम इलेक्ट्रिक करंट निकाल सकते हैं। देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू dq by dt। अब dq का मतलब NeAl डिवाइड बाय dt L by Vd, that is drift velocity, that is NeAl Vd divided by L। अब यहाँ पर L कैंसिल हो जाता है, तो NeA into Vd, ओके। तो I is equal to NeA Vd, ये फॉर्मूला तैयार होता है। इसका मतलब देखिए नंबर डेंसिटी तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट होता है, एंड पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया भी कांस्टेंट होता है। तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Vd, ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच, ओके। तो फ्रॉम दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए इक्वेशन क्या होगा फिर, Vd इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय दिस टर्म NeA, Vd इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय NeA, ओके। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके।